بھئی یہ شریفوں کا محلہ ہے، شریفوں کا، اور یہاں پہ یہ چالے زیادہ دیر تک نہیں چلے. بے شک. محترم، آپ نے جو یہ لفظ استعمال کیے ہیں آپ کو اس کا مطلب پتا ہے؟ یہ اتنے سارے پیسے اس نے دے دیے؟ دیکھ لے اماں، کتنے نصیبوں والی ہماری اللہ رکھی. اسی لیے اسے اپنے ساتھ لے کے گیا تھا، اسی کے نصیبوں سے ملا ادھار. اکرام نے اپنے کیلوں والے ہنٹر سے مارا، اتنا مارا کہ مر گئی. میں نے کہا تھا نا تجھے، یہاں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، موت. اتنا زیادہ مارا نہیں جتنا ڈرامہ کر رہی ہے. خبردار جو آج کے بعد کبھی کسی لڑکی کو اتنا مارا تو 2-3 سال تک ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کی. رہن دے برکتے، تو پہلے ہی اپنے منڈے کو اتنی بد دعائیں دیتی تھی. اور ویسے بھی اس نے جانا کہاں ہے؟ یہاں پنڈ میں کہیں رلتا پھرتا ہوگا. دیکھا یوں سارے گھروں میں. ویسے آپ سنبھال لیں گے نا یہ ساری جو گلی میں بات چیت ہو رہی ہے؟ مجھے تو اس لڑکی پر پہلے شک تھا. لے جا اس پرندے کو. میرا رستہ تاکہ ہے چند سپنے، آؤ نیندوں سے یاری کر لے. رکھی رکھی رکھی، کیا ہے؟ کچھ کھانے کو ہے؟ بڑی بھوک لگ رہی. میٹھی روٹی ہے، صبح سعدیہ آپی نے تھپڑ جو مار رہا تھا، پھر مجھے میٹھی روٹی پکا دی. میں نے اسکول میں بھی نہیں کھائی، ابے کے ساتھ چلی گئی، اتنا شربت پیا، بڑا مزہ آیا. میری اماں تو مجھے مارتی رہتی ہے، کیا کریں، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا. جمشید میری بات سن، سعدیہ آپی کہتی ہیں اصل زندگی شادی کے بعد ہوتی ہے. میاں برفی پتیسا لا کے دیتے اور لال جرابیں بھی ملتی ہیں. تو مجھے کیوں بتا رہی ہے؟ تو نا شادی کر لے، تیری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی جیسے سعدیہ آپی اور استانی جی کی ہے. میں شادی تو کر لوں لیکن لال جرابیں نہیں پہنوں گا، لڑکے لال جرابیں نہیں پہنتے. لڑکوں کو بہت زیادہ سامان ملتا ہے شادی میں، جیسے موٹر سائیکل بھی. موٹر سائیکل؟ میں تو پھر روز پور موٹر سائیکل پہ جاؤں گا، میری بڑی شان ہوگی اور ماسٹر بھی مجھے کچھ نہیں کہے گا. ہاں بڑا مزہ آئے گا. پھر تم چاچی کو بھی بٹھا لینا پیچھے، پھر کرنا گی گی گی. لکی میں شادی تو کر لوں لیکن میرے سے شادی کون کرے گا؟ ہاں ویسے یہ تو بات ہے، بھائی ندیم سے بھی اس کی ملویش شادی کرنا چاہ رہی ہے. ایسا کر تو مجھ سے شادی کر لے. تو پاگل ہو گئی ہے؟ پاگل بھوت نہیں تھے فوج اپنے گھر. ایک تو میری میٹھی روٹی بھی کھا لی، اوپر سے مجھ سے شادی بھی نہیں کرتا. اچھا کرتی ہے چاچی، مارتی ہے تجھے. چل. ارے فکر نہ کیجیے جلیل صاحب، آپ بس دیکھتے رہیے. دیکھیے آج ہم اس محترمہ کا کیا حال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے تو میں اپنے اسکول میں غیر متعلقہ لوگوں کو الاؤ نہیں کرتی، لیکن کیونکہ آپ لوگ میری ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ نسیم زہرا کے والد صاحب کے ساتھ آئے ہیں تو بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ ارے محترمہ، خدمت تو جو آپ کر رہی ہیں وہ کافی ہے. ہم تو صرف یہ عرض کرنے آئے تھے کہ دیکھیے محترمہ، آپ یہ جو تعلیم کی آڑ میں بچیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، انہیں بے راہ روی کی تعلیم دے رہی ہیں، یہ مت کیجئے تو بہتر ہے. بھئی یہ شریفوں کا محلہ ہے، شریفوں کا، اور یہاں پہ یہ چالے زیادہ دیر تک نہیں چلے. بے شک. محترم، آپ نے جو یہ لفظ استعمال کیے ہیں آپ کو اس کا مطلب پتا ہے؟ یہ محض دوسروں پہ روب ڈالنے کے لیے بول رہے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں
कि हम इतने जाहिल हैं कि हमें बेरा रवी का मतलब भी नहीं पता। भाई फी जमाना जो बेरा रवी है हर तरफ बिखरी पड़ी है, कौन है जो इस मनहूस लफ्ज का मतलब ना जानता? जी जी, मैंने इसीलिए पूछा है कि इतनी आसानी से जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है आपको उसका मतलब पता है? कौन सी गुमराही और बेरा रवी चल रही है मेरे स्कूल में? अच्छा, तो फिर बताइए ये गेंद बल्ला क्या है वो? देखिए, खामोशी इख्तियार मत कीजिए, जो हमने सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। आपको बच्चियों के बाहर खेलने से एतराज है? जी एतराज? महज एतराज? मुश्ताइल कहिए मोहतरमा, मुश्ताइल। अरे मुझ समेत पूरा मोहल्ला आपकी इस बात पर मुश्ताइल है। तो ये तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बच्चियां कल से बाहर नहीं खेलेंगी। अरे जाने दीजिए मोहतरमा, क्या बाहर खेलना और क्या अंदर खेल। भाई हम तो इस बात के कायल हैं कि बच्चियों को खेल कूद की तरगीब देनी ही नहीं चाहिए, बात खत्म। मुख्तसर और जामे। जी जी ठीक, दुरुस्त फरमाया आप। जनाब, मैं उनकी तबीयत का रुझान तो नहीं बदल सकती ना। अलबत्ता ये हो सकता है कि मैं उन्हें खेलने के लिए बाहर ना भेजूं। अच्छा चलिए, फिर चलते चलते जरा इस बात पे रोशनी डालिए। ये जो लड़के और लड़कियां एक छत के नीचे कुर्सी से कुर्सी मिला के लड़का और लड़की, मखलूत तालीमी निज़ाम जो, हाँ बजा फरमाया आपने, मखलूत तालीमी निज़ाम आपके ज़ेरे साया हासिल कर रहे हैं, ये कहाँ की रवायत है और कहाँ लिखा है, बता दीजिए। वाह जी ठीक है, समझ गई मैं। फिर आप ऐसा करें कि मुझे एक अलग घर ले दें और चंदा करके स्टाफ अरेंज कर दें, तो फिर मैं कर लूँगी ये। दूसरी सूरत में फीस बढ़ाना पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकती। यानी कि आप हमें ही रगड़ा दे रही हैं। लो बताओ भला, भाई स्कूल इनका, ये स्कूल की मालिका, स्कूल की प्रिंसिपल, और ये सब काम इनके करने के हम करें, भाई हम ये काम कैसे कर सकते हैं? यही बात मैं आपसे फरमा रही थी कि मेरा स्कूल है, मेरी फील्ड है, मैं बेहतर तरीके से समझती हूँ कि मुझे इसे कैसे चलाना है। बाकी अगर आप लोगों ने ये मुद्दा उठा ही दिया है तो आप बहुत समझदार लोग हैं, आपके पास इसका हल भी यकीनन मौजूद होगा। मैंने तो अपनी अक्ल समझ के मुताबिक जो करना था वो मैं कर रही हूँ। वैसे आप लोगों से एक बात शेयर करूँ, जिस इदारे में मैं पढ़ी हूँ वहाँ लड़के और लड़कियाँ अलग अलग पढ़ा करते थे। मैंने इसके नताइज देखे हैं, इसीलिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि जैसे हम अपने घरों में, ख़ानदानों में बच्चे और बच्चियों की इकट्ठे परवरिश करते हैं, उसी तरह उन्हें ऐसा एक माहौल अपने इस इदारे में दे सकूं ताकि उनकी बेहतर परवरिश हो सके। बाकी आप लोग समझदार हैं, बेहतर समझते हैं, जो कहेंगे मैं वैसे कर लूँगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। वाह जी लाहौल जी। पुत्र मजीद, ये इतने सारे पैसे उसने दे दिए? देख ले अम्मा, कितने नसीबों वाली हमारी अल्लाह रखी, इसीलिए उसे अपने साथ लेके गया था, उसी के नसीबों से मिला उधार। अब हमारी सादिया की शादी हो जाएगी? ले, अब नहीं होगी तो कब होगी? अब तो मैं आन गवान में जाके फुलियों पताशे बांटूंगी। सुबह ही ले आई थी, पर दिल को धड़का लगा हुआ था कि पता नहीं पैसों का इंतजाम होता है कि नहीं, लेकिन अब तो बात हो गई पक्की। अरे मैं तो लुडिया डालूंगी, लुडिया। अल्लाह मियां ने मेरी दादी की सुन ली। जा इन पैसों को पेटी में रखा और ऊपर ही रखी, सुबह नाई को साई दे के आऊंगा और सुनियारे से अद्धे तोले कांटे की भी बात करूंगा। जा शाबाश। ठीक है। और रखी रखी की होया पुत्र? कुछ नहीं हुआ अब्बा। और गाल तो सुन, इसे क्या हुआ?
हौसला करे बाजी जी, रब को यही मंजूर। को दफन भी हो गई कर्मा जली। लाल दुपट्टा ओढ़ के तो बिल्कुल दुल्हन लग रही थी, और जो उसके चेहरे पे नूर था, जो नूर था। ये पानी पी लीजिए। बाजी सवेरा, उस वक्त उसके चेहरे पे बड़े नील थे, बड़े जख्म थे। उसके जिस्म में भी नील थे क्या? बिल्कुल नीलो नील थे, निशान ही निशान था। कहीं दांत, कहीं सिगरेट। पाशा से बचकर भागी तो पहली मंजिल से नीचे गिर गई और छलांग मार दी। दोनों टांगें टूट गई, गरीब थी। उसके बाद उन लोगों ने उसे खूब मारा। फिर इकराम ने अपने कीलों वाले हंटर से मारा, इतना मारा कि मर गई। मैंने कहा था ना तुझे, यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, मौत। मुझे अभी और जीना है, हो सके तो तू भी जी ले। रखी, ओ रखी, रखी उठ जा पुत्र। क्या है दादी? पुत्र उधर के जो एक दो घर है ना, उनको जाके फुलियां दे आ, हैं? और साथ ही मेरा संदेशा भी दे देना कि हमारे घर रात को आ जाएं। सादिया को माइयों बिठाना है ना। और हाँ, आते हुए ना वो गोमी बेलदार है ना, उसके घर से परात लेते आना। हमारी परात चिप्पी हो गई है ना, तो उस परात में से बड़ी अच्छी आवाज आएगी, धम धम धम। आप ही सादिया की सच में शादी होगी? सच में परात बजेगी? ले तो और क्या। चल शाबाश मेरा पुत्र, उठ जा, ये दिया सबको। वो क्यों बकवास करता है? कौन? कोई नहीं, मैं परात लाती हूँ। हाँ चल शाबाश। देख लेना, उधर के घर वालों को भी दे देना, जो दूसरी गली के, और सबको कह देना कि ईशा के बाद हमारे घर आ जाए। ठीक है। आए हाय, कितने काम पे ने। होश में रह के तो खर्च किया करो। वो उस्तानी से मिल पाए फिर आप?
सब अगर ये औसत निकाली जाए तो पूरे महीने में 500 रुपए फीकस बिजली खर्च करते हो तुम लोग, और घर में सबसे ज़्यादा तुम होती हो तो सबसे ज़्यादा बिजली तो तुम ही खर्च करती हो। तो फिर अगर तुम थोड़ी सी एहतियात कर लेती हूँ मैं खर्च, एक वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और कभी कभार ग्राइंडर, और क्या कर लेती हूँ। तो बिजली से चलती हैं चीज़ें। भैया हाथ से कपड़े धो लिया करो, वो सिलवट्टे पे मसाला पीस लिया करो। पुराने ज़माने की औरतें कितनी सेहतमंद थी, सब काम करती थी अपने हाथ से। ठीक है, आप ना मुझे यहाँ सहन में एक कुआं खुदवा दीजिए, उससे रोज़ डोल से पानी भर भर के निकाल लिया करूँगी। हद करते हैं आप भी कभी कभार। मैं आपसे पूछ रही हूँ, उस्तानी से मिले, कोई बात हुई या नहीं हुई? ना भाई ना, उसकी तो ना ही पूछो, परों पे पानी नहीं पड़ने दे रही वो। क्यों? ने नईम शेरवानी साहब जैसे बंदे के पसीने छुड़वा दिए, उसने सबको कायल कर लिया। यानी अब किसी को एतराज नहीं है? भाई उसने कहा कि ठीक है, लड़कियां बाहर नहीं खेलेंगी, लेकिन लड़कों का स्कूल वो अलग नहीं करेगी। अब देखो क्या होता है, हम तो यहाँ बिलों में फंसे हैं। ओए फीका किधर है? और इधर ही गया तेरा किराया लेने। मेरा किराया लेने गया? ओ मेरी अम्मा से? नहीं, बड़ी बेबे से। वो कौन है? वो चलाको मासी, अल्लाह रखी, आज पिपली वाले डिब्बे से लंबे नोट लेके आए हैं, हमारा भी तो कोई हिस्सा बनता है। चोरी करना क्या फीका? और सारे पैसे थोड़ी लेके आएगा, और जितने की लोड है उतने लेके आएगा, और जब तू शहर से कमा के लाएगा तो उससे दुगने वापस कर देंगे। मगर ये तो चोरी है, और तुझे पता है मास्टर क्या कहते हैं कि चोरी करना बहुत बुरी बात है। और चल पुत्र, उस मास्टर की वजह से तू यहाँ पे बैठा है। अगर वो तुझे मार मार कर बांदर ना बनाता तो इस वक्त तू माँ के पास होता अपनी, इधर धक्के ना खा रहा होता। मास्टर के सबक भूल जा झूठा जमाने का, और जब तू शहर से बड़ा आदमी बन के आएगा ना तो सबसे पहले उस मास्टर का बूटा चुकना। ले भाई आ गया भाई, चलो हो गया काम। हाँ हो गया है, चल चल आजा भाई, और चल भी, और चल बस निकल जाएगी। कभी संगत सूरज से घड़ ले, आओ मंजर आंखों में भर ले, मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले, जब सिसकियां हो जाए गूंगी, हाथ उठा कर आसमां के डाल दोनों खुद ही पहुंच ले, फिर आस के तारे करके जमा, उन्हें आसमां को वापस कर दे, मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। रोको साजी रोको, आजो जी मांगे मंडी वाले, जल्दी आओ भाजी, आजो आजो। जान दो साजी। चाची, चाची। हाँ रखी, क्या हुआ? ये दादी ने भिजवाया है और कहा है अजान के बाद आ जाना। हाँ वो सादिया की शादी है ना? जी चाची, और कहा है पीतल की परात भी दे दे। पीतल की परात जो है ना वो मैंने जमशेद की वोटी के लिए रखी हुई है, जब उसकी शादी होगी ना तो मैं तो आटा वैसे भी गुनाली में गूंद लेती हूँ। आटा भी उस दिन गूंदता है जिस दिन दिहाड़ी लग जाए मेरी। पर तुझे मैं क्या कहानियाँ सुना रही हूँ,
अंदर पचत्ती पे पड़ी है, मैं लेकर आती हूँ, दे देना दादी को। ये ले रखी, दे देना मासी बतूला को, कह देना मैं आ जाऊंगी। रखी, वो तूने जमशेद को आज कहीं देखा था? उधर ही था, ठीक है, और लियाज के साथ। वो दोनों तो इतने गंदे हैं, मैं भाग गई वहां से। चल जा। हाथ सफेद इसकी पट्टियां। मेरी लड़की मर गई और ये कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। देखिए मैडम, ये एक हादसा था, लड़की ने गार्ड्स के सामने छलांग लगाई। वो ऐसा है कि पोस्टमार्टम कराया है हमने, रिपोर्ट है हमारे पास, और उस पर साफ साफ लिखा है कि तशद्दुद हुआ है लड़की पे, गवाह है। पोस्टमार्टम? ठीक। देखें जनाब, कभी कभी चालाक से चालाक आदमी भी ऐसी सिचुएशन में फंसता है जहां चालाकी उसके फायदे में नहीं, नुकसानदेह होती है। अगर पाशा को नामजद करते हैं तो उसकी जमानत के लिए लामहला आपको उसकी ज़हनी सेहत सामने रखनी पड़ेगी, और वो तो आपको मंजूर नहीं। हम भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे, और कुछ ना कर पाए तो कम से कम आपको बदनाम जरूर कर देंगे। सोशल मीडिया आपके सामने है। इन लोगों को एक हद से आगे ना ही सताएं तो बेहतर है। दरमियान का रास्ता है मेरे पास। वो क्या? तशरीफ लाए मेरे साथ। चाहिए। देखा डॉक्टर साहब, कैसे होते हैं बड़े लोग, इनके सीने में दिल नहीं, खसखस के दाने होते हैं मुन्ने मुन्ने से। ठीक कह रही मैडम, अब ना ये अपना हाथी जितना बड़ा दिल लाकर सुलह करेंगे तो फिर मोटी रकम दे के जाएंगे। हाय, मैंने क्या करनी है मोटी सी रकम, चूल्हे में जाए रखा। मेरी तो लड़की मर गई। हाय, इतनी अच्छी लड़की थी, सादी सी, इसकी तरह नहीं। तौबा तौबा, हाय मेरी तौबा, जो मैंने आज के बाद कभी गांव की लड़की ली तो तौबा तौबा। 1 करोड़। क्या हुआ, तुम जाग क्यों रही हो अभी तक? नींद नहीं आ रही। क्यों? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अम्मी, मैंने ख्वाब देखा। कैसा ख्वाब? बहुत अच्छा ख्वाब, बहुत प्यारा ख्वाब। अम्मी, मैंने देखा कि बहुत बड़ा सा स्टेडियम है जिसमें हर मुल्कों के झंडे हैं, और उसके दरमियान पाकिस्तान का भी झंडा है। बहुत बड़ा विक्ट्री स्टैंड था जिसमें मैं खड़ी थी, पाकिस्तान का ग्रीन ब्लेजर पहन के। अम्मी, फिर मैंने देखा कि नीली आंखों वाला अंग्रेज मुझे वर्ल्ड कप दे रहा है और सब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। अम्मी, मैंने वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान के लिए, कसम से अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही। जा तो जाके सो जा, सुबह स्कूल में लेट हो जाएगी।
बोल कैसा लगा लो शहर, मजे आ रहे हैं? यार बहुत शोर है। आज तुझे हम फिल्म दिखाएंगे। तूने किया सिनेमा? फिल्म देखी है कभी? मैंने फिल्म नहीं देखी। तैयार हो जा। आज तुझे हम ऐसी चीज दिखाएंगे जो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। लिया वैसे तो चोरी हो गई, मगर बस में किसी ने काट दिया इसे। हमारे पास अपना घर 26 घंटे कैसे पूरा करेंगे? ऐसा ही करते हैं, भाग जाती है। आजा। इलियास, ठीक है? इलियास, ठीक है? ठीक है? इलियास, ठीक है? गाना छो, थोड़ी गिद्दा भी पाओ। चलो उठो, शाबाश। उठो 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 उठो, चलो चलो। हाँ शाबाश। मेरे बाप का जवाई भी बड़ा सोना, मेरे बाप का जवाई भी बड़ा सोना, मेरे बाप का जवाई भी बड़ा सोना, मेरे बाप का जवाई भी बड़ा सोना। मेरियां जान मेरियां, आन मेरियां जान मेरियां, निभा बन के कबूतर पामा गेड़ियां, निभा बन के कबूतर पामा गेड़ियां, बन के कबूतर पामा गेड़ियां, निभा बन के कबूतर पामा। ऐसे नहीं जाना, किधर गया तेरे दोनों दोस्त? बड़ा खा लिया कर। पैसे ले दिए 500 रुपया है। पैसे तो बता नहीं जाना। क्या हुआ? मैं लेके जाऊंगा, बेबी तुझे रोना नहीं है।
वैसे आप संभाल लेंगे ना ये सारी जो गली में बातचीत हो रही है? मुझे तो इस लड़की पर पहले ही शक था, मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा था। ये गांव की लड़कियां होती बड़ी ढीठ है। मैं देख लूंगा। वैसे इससे मोहल्ले के लोग जो होते हैं वो इस मामले में दखल अंदाजी करने को पसंद ही नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्राइवर हजरात या कोई और साथ आए हो, बस 2-4 दिन वो बात करेंगे फिर भूल जाएंगे। आप फिक्र मत करें, मैं संभाल। एक तो लड़की मर गई, अब ये जो दूसरी है अगर मरी नहीं तो मरने वाली होगी। हाय हाय, ये इकराम बड़ी बुरी तरह मारता है, तो जानवर है बिल्कुल। वैसे आपको यकीन है कि ये लड़की गांव से ही आई? आपको यहाँ आते जाते कोई 1-1.25 साल हुआ है, तो मैं तो यहाँ कब से बैठी हूँ। इन लड़कियों की माँ हूं मैं। कहीं और जाती ना लग पता जाना था। मैं चलता हूँ, कोई मसला हुआ तो खालिद को याद रखिए। वैसे भी ये निजामी की पार्टी तक सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। और हाँ, सुंबल को निजामी की पार्टी में जरूर जाना चाहिए। आप समझ आएंगे। अब इजाजत। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं समझ रही हूँ कि सारे आसपास वालों से मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ, तभी तो यहाँ बैठी हुई हूँ। मुझे समझा रहे हैं। आजा आजा मेरे बच्चे, आजा। देख कितने बच्चे सो रहे हैं, सपनों के बीज बो रहे हैं। आ बैठ। नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। चले जाना बेटा, चले जाना, भेज देंगे घर भी। घर से भाग के आए ना लाहौर के मजे लेने। मैं भाग के नहीं आया था, अपने दोस्तों के साथ आया था और वो गुम हो गए। यही तो, दोस्त रास्ते में छोड़ जाते हैं, गुम हो जाते हैं, लेकिन बाबा रांझा सबका साझा। बाबा रांझा मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ता, तुझे भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तू सो जा। देख इतनी रात हो रही है, कहाँ जाएगा, कौन बिस्तर देगा। सो जा, सुबह बात करते हैं। उतार जूती, उतार उतार मेरा बच्चा, पैर ऊपर कर, लेट जा लेट जा लेट जा मेरा बच्चा, लेट जा, सो जा, निन्नो। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, सो जा। खाते खरगोश के मजे में। क्यों भागी? कोई फायदा हुआ? इतनी सी थी जब से तुझे समझा रहा हूं, तेरी अकल मोटी है, तुझे समझ नहीं आती। पता कहां गई थी तू? कब्रिस्तान। शमशा की कब्र पे? हाँ, नहर वाले कब्रिस्तान। इतनी दूर पैदल? तू क्या करने गई थी वहां? तुम लोग पूछते हो ना वहां क्या करने गई थी।
हाँ, क्यों गई थी तू वहां? गधे को दवा लगाने गई थी। और मुझे पता है तू झूठ बोल रही थी। झूठ नहीं बोल रही मैं। वहां गाड़ी रुकी थी ना, तो मुझे लगा जैसे जैसे मैंने किसी देखी हुई चीज को देखा है। फिर मैं सोचने लगी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मैं गाड़ी से उतरी, मैं चलती गई आगे चलती गई, और वहां वो खड़ा था, जख्मी और पूरा। ये ले, दूध लाई हूँ मेरी जान, हल्दी डाल के ये ले। पी ले। 3 दिन की दर्द और नींद की दवाई दी है, इंजेक्शन नहीं लगाया मैंने। 3 दिन में इसका दर्द भी खत्म हो जाएगा और ये निशान भी चले जाएंगे। ताकि आंटी के बिकने के लिए मैं फिर से तैयार हो जाऊं। बिल्कुल ही मत मारी गई है ना तेरी। इतनी पिटाई हो गई, इतनी मार खा ली तूने, फिर वही बकवास करी जा रही है। तुझे पता है ना इसका, ये सिवाय पिछले 2 सालों के कभी चुप हुई है? तुम लोग जाओ, मुझे सोना है, और लाइट बंद कर देना। तो ये दूध तो पी ले। जाओ ना, लाइट बंद करके जाना। चल। अरे तेरे हाथ क्यों ना टूट गए? बेअक्ल कहीं का। एक लड़की पहले ही जाया हो चुकी है, अब दूसरी को भी मारने लगा था। इसलिए भर भर के प्लेटें खाता है ना। और आपने खुद ही तो कहा था, जो लड़की भागते हुए पकड़ी जाए उसको इतना मारो कि वो दोबारा भागने की हिम्मत ना कर सके। ये तो नहीं कहा था कि उसको जान से ही मार दो। जो तू इतना खाता है ना, उससे तेरे दिमाग पे भी चर्बी चढ़ गई है, और वैसे भी अगर उसे कुछ हो जाता तो तूने भूखों मर जाना था, पता है तुझे? सबेरा की उम्र देखी है, जो बाकी लड़की हैं तो ना अक्ल ना तमीज। कोई कुछ कह देता है तो क्यों कि ये करके हंसना शुरू कर देती हैं, और फिर ढेरों फरमाइशें। ये तो रिमशा और ये बच्ची है जिसकी वजह से तेरी दाल रोटी चल रही है। इतना ज्यादा मारा नहीं जितना ड्रामा कर रही है। खबरदार, जो आज के बाद कभी किसी लड़की को इतना मारा तो 2-3 साल तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। चल, जूती उतार के तेरे सिर में मार। मैं डांट रही हूं, आगे से दांत दिखाता है मुझे। पता है मुझे, आप ऊपर से डांट रही हो, अंदर से आपके दिल में लड्डू फूट रहे हैं। कम बात कही। चल दफा हो, गेट को जाके ताला लगा। तेरे ड्रामे हो गए आज के दिन के लिए। मेरा रास्ता ताते हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। हाँ, इधर। अब्बू, अब कल से मैंने भी स्कूल जाना करना है। अगर कल से मैं स्कूल ना गई तो मैंने आप लोगों को छोड़ना नहीं। लो, इसकी भी सुन लो आप। काजी साहेब। जनाबे शेरवानी साहेब, आ गया। अरे आज इतनी सुबह। चलो चले गए, तुम लोग भी जल्दी जल्दी अब तैयारी करो और स्कूल जाओ, वरना लेट हो जाओगे। मैं भी नहीं जाऊंगी, भाई नहीं अंकल है, घूरते हैं, ऐसा लगता है कि अभी खा जाएंगे। बुरी बात, बड़े हैं वो। ऐसे होते हैं बड़े। चलो भाई अंदर चलो दोनों, चलो। अब्बू स्कूल के लिए। अरे बाढ़ में क्या, स्कूल जो कहा है ना, बस चल। अच्छा, अब्बू कह रहे हैं जाओ अंदर, सुना नहीं तुमने? क्या हुआ? वो नईम शेरवानी साहब आए थे। हाँ तो? वो कह रहे हैं कि मोहल्ले में से कोई भी
अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा, तो आप भी अपनी बच्चियों को स्कूल ना भेजें जब तक वो लड़के लड़कियों का स्कूल अलग ना कर ले। पर कल ही तो बात हुई है, फिर ये कल की बात और थी, आज कह रहा हूँ फजूल बहस ना किया करो। अब यही असर लेती हैं बच्चियाँ, यही आदत हो गई उनको भी। पर इस तरह तो उनकी पढ़ाई खा रहा है। फिर वही बात, जब कह दिया तो बस कह दिया। और तुम लोग ये वर्दी ये यूनिफॉर्म बदलो और जाके कोई माँ का हाथ बटाओ बावर्ची खाने में। ओए, तुम लोगों ने मेरे लड़के को देखा है? कल रात से घर नहीं आया। नहीं तो चाची, उसे मैंने ना बड़ी सड़क की तरफ जाते देखा था। कोई गल बात की, कुछ बताया कहाँ जा रहा था? इससे तो कुछ नहीं कहा, मुझे दोपहर में कह रहा था कि अम्मा मारती हैं, घर से भी निकाल दी है। शहर जाऊंगा, बड़ा आदमी बनकर वापस आऊंगा। पुत्र छेती छेती हाथ चलाओ, केड़ा वेला आ गया, काम ही नहीं मुक्या है ਤੁਹਾਡਾ। ओए अब क्या हुआ है? पैसे अब भी थोड़े हैं अम्मा। अब भी थोड़े? 50,000 पूरे नहीं है, किसी ने 5 नोट गड्डी में से खिसका लिए हैं। हाय रब्बा, ये किसने किया है? और तू इस बात को छोड़ अम्मा, अगर कोई ना भी खिसकाता तब भी पैसे पूरे नहीं थे। कांटे तो आ जाएंगे पर रोटी के लिए पैसे थोड़े हैं। पुत्र, वो कल जान जानी है, कहाँ से इतना इंतजाम करेंगे? यही तो सोच रहा हूँ कि क्या करें। बात सुन, वो अपनी सोमी से पकड़ के ले आ। और सोमी से तो पहले ही अम्मा, हाँ? अपना खोता ना बेच दी। वो तो पहले ही उसके पास लिखा हुआ है ना। उसको बताओ ना किसने अम्मा, दाम टपाओ, वक्त कटना है बस। पुत्र, ये हम गलत तो नहीं कर रहे। और कुड़ी को भी तो कार से तोड़ना ना अम्मा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पर ये सब कुछ, और तू डरा ना अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? इधर आ। पैसे थोड़ गए, कह रहा है कि खोता बेच लेते हैं। ठीक तो कह रहा है अम्मा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। काकी रजिया, वो खोता पहले ही उसके पास लिखा हुआ है। कुछ नहीं होता अम्मा, पहले क्यों नहीं ख्याल आया? पहले बेच देते तो अच्छे भले पैसे तो मिल जाते उसके। तो मैं जाऊं? चल ठीक है। तो फिक्र न करना, सब ठीक हो जाएगा।
ले लिए पैसे। करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आ गया परिंदे, हैं? दिखाऊं तुझे दरिंदे। मैंने घर जाना है। हाँ, तुझे सैर करा दें, तेरा घर तो दिखा दें। बैठ, इधर आ तू। मुझे घर जाना है। ये देख रहा है? ये अंधा है ना? होगा ही अंधा, लेकिन मुझे मेरे घर जाना है। ये भी कहता था मुझे घर जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है। फिर ये अंधा हो गया। और वो देख रहा है, वो टुंडा, ये टुंडा नहीं था। ये भी कहता था मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है। फिर ये टुंडा हो गया। बैठ, छोड़ दे अब तू ये नादानी, छोड़ दे अब तू ये नादानी, ना कर आना कानी। शीदा, गुड्डू, पप्पू, रानी, अंधे, बहरे, गूंगे, कानी, यही है अब घर तेरा प्यारे। घर आंगन माँ ख्वाब कहानी, घर आंगन माँ ख्वाब कहानी। यस, इमदाद, ओए इमदाद, ले जा इस परिंदे को। तू नहीं, तू मेरा बच्चा मांगने जाएगा, पैसे कमा के लाएगा, मांगने जाएगा, पैसे कमा के लाएगा। दे सकी अल्लाह के नाम पे, अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे। है? बैठ जा। अच्छा बस भी करो, पानी ला के दो मुझे। क्या क्या कह रही थी मैडम? कहना क्या था, कह रही है स्कूल बंद करके जा रही है। क्यों? और क्या करे, अच्छी खासी पढ़ी लिखी सियानी औरत, उसे क्या पड़ी है कि हमारे मोहल्ले में वक्त ज़ाया करे। वो तो कही थी जिस दिन नईम साहब गए थे उनसे बात करने, उसी दिन फैसला कर लिया था कि यहाँ स्कूल नहीं चल सकता, कहीं और जा रही हैं। तो अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अच्छा बता रही हूँ, सब्र करो, पहले पानी ला के दो। तुम लोगों के लिए गई थी मैं वहाँ पे, मैडम कह रही थी वो जो बड़ी सड़क पे गवर्नमेंट का स्कूल है ना, वहाँ दाखिल करवा दो। वो तो इतनी दूर है। तो और क्या करो, अल्लाह बेड़ा गरक करे उस शेरवानी साहब का, बैठे बिठाए ये मुसीबत डाल गए। तुम क्यों परेशान हो रही हो? रिक्शा लगवा दूंगी मैं तुम्हें। ठीक ही कहते हैं तुम्हारे अब्बू, मैं अगर बचत करूँ ना तो सब बेहतर हो जाएगा, तो रिक्शे का खर्च भी निकल आएगा। वहाँ हम खेल सकेंगे? पता नहीं,
कैसी है मेरी चंदा? ठीक हो? हाँ अब तो ठीक हो। बड़े जूते मारे मैंने उसको इकराम को, नमक हराम कहीं का, जरा एहसास नहीं। आज कहाँ जाना है? अरे माँ सदके, मैंने कहा जरा सैर कर ले लड़कियां, इसीलिए तो भेज रही हूँ। यही तो उम्र होती है। हाँ तुम और सवेरा चली जाओ, वो फार्म हाउस पर तुम्हारी उम्र के सारे लोग होंगे, जरा डिप्रेशन कम हो जाएगी हैं। हाँ निजामी मेरी उम्र का ही है ना। चलो ना सही, पर जाना तो है ना, तो तैयार हो जाओ। वही था, वही था, मैं उसे पहचान गई थी, वो भी मुझे पहचान गया था। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? कैसे? तो जितना भोला नजर आता है इतना है नहीं। तू घर से भागा है, और अच्छे बच्चे घरों से नहीं भागते, जानता है? जानता है इस शहर में भागे हुए बच्चे मेरे चुंगल में आके फंस जाते हैं, और जो मुझसे बचे ना वो घूम फिर के मेरे अड्डे पे आते हैं, क्योंकि पूरे शहर में तुम जैसे बच्चों को काम पे लगाना मेरा ही काम है, वरना अड्डे वालों के डिक्के चढ़ जाते हैं, जो उनके साथ ज्यादती भी करते हैं और उनसे भीख भी मंगवाते हैं और उनको नशे पे लगा देते हैं। अब फैसला तूने करना है। तो चाहे तो सही सलामत रह के मेरे साथ काम कर, कमा, हो सकता तू बड़ा आदमी बन जाए, हो सकता तू घर भी चला जाए अपने, लेकिन जानता है मेरे टुनमुन माजूर बच्चों को सही सलामत बच्चे लेकर जाते हैं, भीख मंगवाते हैं और शाम को वापस लाकर देते हैं खाना, और खाने में देते हैं एक रोटी। एक रोटी। मैं तुझे यहां बंद करके जा रहा हूं, 2 दिन के बाद आऊंगा, बिरयानी का डब्बा लाऊंगा। पार्टनर बनना है या जो भी बनना है, टेंट मुंड माजूर बता देना, जो तेरा फैसला मंजूर। करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे।
अरे आप पार्टी छोड़ के यहाँ क्यों आन बैठी? मुझे शोर पसंद नहीं है। लेकिन मुझे शोर बहुत पसंद है। कभी कभी किसी दूसरे के लिए अपनी पसंद को बदलना पड़ता है। आपने बदला है कभी किसी दूसरे के लिए अपनी पसंद को? ये मजबूर लोगों का काम है। ऐसे ही जो आपके लहजे की तलखी का जायका है, ये बहुत मशहूर है। बाय द वे, सभी से पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे ब्लैक कॉफी, सिगार और बदमिजाज लड़कियां बहुत पसंद है। और मुझे खामोशी, तन्हाई और जानवर बहुत पसंद है, लेकिन 2 टांगों वाले। What a combination! चलिए इसी कॉम्बिनेशन पे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। एक बरखुरदार है जो जानवरों और बच्चों के हकूक के लिए काम करता है, वीडियोस बनाता है। देखो, इस तरह की अगर मुझे और वीडियोस देखनी हो या मुझे सीखना हो कि कैसे देख सकते हैं आप मुझे सिखाएंगे? श्योर, क्यों नहीं? वेरी सिंपल। Speak this. Play video. Look. तुम्हारी अपनी का क्या हाल है? सुंबल की बात कर रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। पल में तोला है, पल में माशा। कभी बिल्कुल डर जाती है, कभी निडर हो जाती है, मार खाती है, हड्डियां तुड़वाती है, पास नहीं आती, फिर भाग जाती है, और अभी देखो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक बात बताऊं, हम सब में सबसे ज्यादा मजबूत है। रास्ता बना लेगी। ड्रिंक लो।
आलू कीमा खा ले मेरे पोले पोले। ये तूने बहुत अच्छा फैसला किया है कि तू हमारे लिए काम करेगा। अब तू काम पे जाएगा और तेरे साथ जाएगा एक लड़का, सर पे जाली वाली टोपी, सफेद कपड़े, चेहरे पे मस्कीनी, मायूसी, मतानत। और तुम आबादी में उस वक्त पहुंचोगे जब घरों के मर्द काम के लिए घरों से बाहर चले जाते हैं। तुम गए, तुमने जाके बैल दी, टीप। बेगम साहिबा आई, वो पूछेंगी क्या बात है। बेगम साहिबा, वो बाजी मस्जिद के लिए चंदा दे दे। वो जैसे ही पैसे लेने अंदर जाए वहां से कोई कीमती चीज उठा लेनी है, काम। और बात सुन, कोई घटिया चीज मत उठाना, बिकेगी नहीं। मगर ये तो चोरी होगी। नहीं 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 नहीं, चोरी नहीं है, चोरी नहीं है, ये चतर है। चोरी से अगला दर्जा चतर, इसे फनकारी कहते हैं। मैं ना बहुत बड़ा फनकार हूं। अगर इस मुल्क में फन की कदर होती तो मैं बहुत बड़ा एक्टर होता। दे सकिया, अल्लाह के नाम पे दे सकिया, अल्लाह तेरी आस उम्मीद पूरी करे। सबका भला, सबकी खैर, भले का भला, भले की खैर। बाप सरा दे ताज मोहम्मद, मामा ठंडियां छावा, सब कुछ लब जांदाए थे, नहीं जे लब दिया मावा, नहीं जे लब दिया मावा, नहीं जे लब दिया मावा। ये गदागरी नहीं, थिएटर है, ये सब थिएटर है। एक फरंगी ने कहा था ये दुनिया थिएटर है, हम सब एक्टर। और वो अपना इमदाद नहीं है, बड़ा रंगबाज है, बहुत बड़ा एक्टर है। जेब में तीली पटाखा लगता है, जैसे ही हमारा कोई बंदा फंसता है पटाखा चलाया तो लोग आज बंदा पाट गया, और बंदा वहां से निकाल के ले जाता है। बात सुन, तू शक्ल से मासूम लगता है, अब तू हमारे लिए काम करेगा, वारदात डालेगा और कीमती चीज उठा कर लाएगा, फजूल नहीं, समझा? तो खाना मेरा बच्चा, तू खाता क्यों नहीं है? इतना कमजोर होता जा रहा है तू, खा। ये पुट का गोश्त है, मैं कीमा बनवा के लाया हूं, खा मेरा बच्चा, खा मेरा बच्चा, खा। इमदाद, इमदाद। जी वो मेरे अब्बू नहीं है। तो मैं क्या करूं? जाओ जाओ यहाँ से। मैंने मारे हैं तेरे अब्बू।
अब साल के बीच में कहाँ रखूं इनको मैं? क्लासरूम्स हैं कि भरे हुए, बच्चों पे बच्चे चढ़े हुए हैं। तालीम मुफ्त की हो या पैसों की, स्कूल है कि भरे हुए, और मुल्क है कि जहालत से भरा पड़ा, क्वालिफाइड जाहिल हर तरफ। ए लड़की, तुम बड़ी बेचैन बूटी हो। उस वक्त से तुम कभी यूं करती हो कभी मुंह करती हो, चैन से बैठा नहीं जाता तुमसे। वो असल में मैडम जी बात ये है कि इनका स्कूल ना अचानक ही बंद हो गया, 1 साल ज़ाया हो जाएगा इसलिए। अच्छा अच्छा, करती हूँ कुछ। ए, तुम फिर हिली, चैन नहीं है तुम्हें? अम्मी, ये तो बहुत बड़ा स्कूल है, इसमें प्लेग्राउंड भी होगा क्या? जी, फजूल बातें करने की आदत है इसको। चुप कर। देख रही हूं मैं, नजर आ रही है मुझे। रखती हड्डी, ऐसी लड़कियों को ना मैं सीधा कर देती हूँ। प्लेग्राउंड का तुमने अचार डालना है? चल के सीधी सीधी पढ़ाई करो कि माँ बाप बेचारे सर से उतार सके तुम्हें। आजकल के लड़के वालों को भी ना पढ़ी लिखी डॉक्टर बहुएं चाहिए, जो और कुछ ना कर सकें तो सास का ब्लड प्रेशर और ससुर के दमे का इलाज तो करें। जी, मैं भी बस यही कहती हूँ, लड़कियां पढ़ जाएं किसी तरह, इन दोनों का दाखला हो जाए ना। तो वैसे तो एक इनसे भी छोटी है रुबाब ज़हरा, पर उसको तो खैर पोलियो है। तो पोलियो है तो क्या हुआ, उसे भी दाखिल कराओ। क्या उम्र है उसकी? 5 साल की है, पर लगती बहुत छोटी है। लेकर आओ उसे। और ये प्लेग्राउंड वाली, इसका तो मैं वो हाल करूंगी कि याद करेगी। एक बार आ जाए स्कूल, फिर खिलाती हूँ इसे मैं गेम्स। बस पिंड सोना है। हाँ जी, पहुंच ही गए हैं। अरे पर पुत्र चल के आना। अम्मा, हाँ वो सादिया नहीं लगती? हाँ हाँ हाँ, सादिया, सादिया मेरी बेटी, ऐसा क्यों बैठी की है? बोलते नहीं क्यों है? क्यों? अरे क्यों बैठी है? टीवी आई क्यों है? दादी, वो ना सबको रोटी लाने गई, सारे लोटा ले लेके बाहर जा रहे थे, और ना लड़कों ने नदीम को मैंने मारे के यहाँ पे मोटरसाइकिल भी नहीं मिला। बस 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 कर पुत्र, बस कर। चल चल मेरे नाम, मैं कल काटने शरीफा जानी है। और जो लोग रात की ब्याही हुई कुड़ी को कार से निकाल सकती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अम्मा, वो सब कह रहे थे कि ना रोटी में रख के रख दी, और रोटी के साथ बोतल भी नहीं थी। सबको बुरकियां ना गले में फंस गई, और ना अम्मा की दाढ़ में दर्द हो गया, ब्रेलर मुर्गी नहीं खा सकती तो बोटी फंस गई थी। चल पुत्र चलिए, बाहर चलते हैं। बहुत लंबा पैदा हुई थी, खोता भी नहीं रहा। यहाँ पे बेड़ा खड़क करे तो है ना। हम किधर जा रहे हैं? और भाई सैर करवाने लेके जा रहा हूँ तुझे, जो तूने अपने दोस्तों के साथ करनी थी। और मैं भी तो दोस्त हूँ ना तेरा, क्या ख्याल है? ले भाई, मैं जरा आगे चक्कर लगा के आता हूँ, तू यहाँ घरों को देख। भाई अब पता तो चल गया ना कि क्या करना है। पहला हाथ तो बहुत अच्छा पड़ा है। आज अगर 5-10 हज़ार की दिहाड़ी लगा ली ना तूने, तो रात को फिल्म देखेंगे। चल चल शाबाश, चल चल चल।
चोर चोरी करता है? मेरी चीजें चुरा कर लेता है। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मारूंगा, तेरे घर वालों को शिकायत करूंगा तेरी। मेरा बच्चा, अरे किधर रुलता फिर रहा होगा, पता नहीं रोटी खाई है कि नहीं खाई है, पता नहीं किधर चला गया है। रहने दे बरकते, तू तो पहले ही अपने मुंडे को इतनी बद्दुआएं देती थी, और शुक्र कर तेरी जान छूटी उससे। और वैसे भी उसने जाना कहाँ है, यहाँ पिंड में कहीं रुलता फिरता होगा। देखा ही सारे घरों में, बाकी जो घर है रखी गई है देखने के लिए। हाय मेरी कुड़ी रखी, वो तो असली कमली है, और तू जानती तो है ये शादी वाला घर है, 100 काम है यहाँ पर, और पूरे पिंड में पंबीरी बनी घूम रही होगी। आली नहीं रहा शादी वाला घर, मासी बतूला गई हो मकला वाले की। ये परात तो ले जा अपनी। ना मैंने क्या करना अब इस परात का, रखी के लिए रख ले तू, वो भी तो मेरे जमशेद जैसी है, उसके दाज में दे देना। तुम लोग भी उड़ जाओ मेरी तरह। पागल लड़की, इतनी मार खा के पता नहीं कौन उड़ना चाहता है। संभल। हाँ अलमारी में कुछ छुपाया हुआ है ना तूने? हाँ, कारून का खजाना। हाय अल्लाह, बाजी सवेरा, हर चीज़ तो आंटी मंगा देती हैं, हमें कुछ मंगाना होता है तो जीना या इकराम को बताते हैं, वो भी जाके आंटी को ही बताते हैं। पैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं, मैंने क्या छुपाना है? ऐਵੇਂ मुझे लगा था। तो कर लो तलाशी। मैंने क्यों लेनी है तलाशी? ऐसी बातें क्यों करती है तू? तो बात तो कर सकते हैं ना, या उस पर पाबंदी है? तुझ पे पाबंदियां लगाने वाले पैदा नहीं हुए अभी तक। जो तेरे दिल में आए क्या है, खुल के बात कर मुझसे। चल। याद है बाजी सवेरा, जब पहले दिन आई थी, कितना रोती थी मैं यहाँ पे। घर वालों को याद करती थी ना, और घर वालों के साथ किसी और को भी याद करती थी। पता है बाजी सवेरा, उस रोज मैंने उसे देखा और वो भी मुझे पहचान गया। तुम देख लेना, मैं नहीं यहाँ रुकती, निकल जाना मैंने यहाँ से।